गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं पैनलिस्ट को इनवाइट करूंगा स्टेज पर। आशीष जी पेठे, डायरेक्टर वामन हरी पेठे ज्वेलर्स। तालियों का गड़गड़ा होना चाहिए भाई। हमारे सुभाष जी बोला कहाँ गए? वासुपल जी आप आइए। ये वासुपल जी रांका ज्वेलर्स। मैत्री तेजवानी फ्रॉम गुंजन ज्वेल्स। अरे जरा बाहर से सुभाष जी को बुलाइए ना। सुभाष जी बोला। मिस्टर नील पेठे फ्रॉम पेठे ज्वेलर्स। वाह वाह। सुभाष जी, हाँ ओके, आई कांट हेल्प इट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, फैमिली बिजनेस, फैमिली लेगेसी टू द नेक्स्ट जन। सुभाष जी आपका इंतजार कर रहे थे, आपके बिना सभा चालू नहीं हो सकती है। सुभाष जी बोला एंड सन्स ज्वेलर्स, ये हमारे एक लेजेंड्स हैं इंडस्ट्री के। Good morning, ladies and gentlemen. Today we all are here. Thank you for taking out your precious time for the next panel discussion of the topic family business or family legacy to the next gen. Thank you GJC and next gen team, and a special thanks to Nilesh Bhai and Sunny Bhai. Today we will be discussing on kal, aaj or kal generation. Today we have one of the my favorite great legends and the talented and dynamic generation with us on the panel. So it seems to be very interesting, learning and inspiring session. So let's begin with a big round of applause. Hello. आवाज आ रही है? Thank you everybody for joining us and तो शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? अरे सॉरी सर। पैनल डिस्कशन चालू करते हैं। बहुत ही फैमिली बिजनेस, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की तारीख के अंदर। फैमिली लेगेसी, जो इतने बरसों से बिजनेस को बनाया है अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, और अब नेक्स्ट जन को देने में दिक्कत तो होती होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि वो नेक्स्ट जन और इसको बड़ा बनावे। तो ये दो जो फीलिंग्स बीच में आती है, किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी करेंगे। और आज मैं भी खुद बहुत सारी चीज़ें इन लोगों से सीखूंगा आज। तो सबसे पहले अपन चालू कर रहे हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू डीप डिस्कशंस ऑन द फैमिली बिजनेस, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरी पैनलिस्ट अबाउट देयर ओन फैमिली बिजनेस एंड लेगेसीज। और मैं ये भी जानना चाहूँगा हाउ एंड वाई यू एंटर योर फैमिली बिजनेस। तो मैं सुभाष जी आपसे चालू करना चाहूंगा, तो आप थोड़ा सी इसमें प्रकाश डालिए। 1966 की बात है सर। सो आज इस बात को लगभग 55 years have already been there. When I was supposed to join my family business, we had a family business in a place called Shri Ganganagar. It was a family business. Our forefather used to do business in a place near Rawalpindi in East Punjab at that time, and after partition they came to Delhi. From Delhi they could not settle and went to Shri Ganganagar in Rajasthan. That was somewhere about 1947-48. My father was a mechanical engineering graduate, and his family didn't wanted him to do service into the Royal Navy at that time, and he had to join
फैमिली बिजनेस बिकॉज फैमिली वांटेड इट टू हैव. इसके बाद में बात आ गई व्हेन ही केम टू इंडिया, स्टार्टेड बिजनेस. In 1966, I was doing first year in college, and I had a desire to become a doctor. उन दिनों में सबके मन में एक ही बात आती थी, या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है. दो ही बात सबके मन में आती. And I was willing to become a doctor. But what happened? My uncle expired, and we had a very fine business at that time in Ganganagar. And my father asked me to join business. I told him, no, I'm not going to join. Then he said, but then who is going to take care of business? My eldest brother was studying in a medical college in Bikaner. And at that time, he came back because my exams were there. And after the examination, my brother told me, well, Subhash, in case you get admission in medical college, you will go to medical college. Otherwise, I will remain in the medical college and you will do the business. No excuses. So agreement happened, and I could not get admission to medical college. चालू से लड़के थे, हम पढ़ाई ज़्यादा करते नहीं थे, नंबर ज़्यादा आते नहीं थे. So I failed to got admission in the medical college, and I joined the family business. But I told my father, well, give me the permission to study. I don't want, you are a mechanical engineering graduate, my brother is studying in professional colleges. I don't want to stay at back foot. So that people would say कि ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, पहले ही निकम्मा था, पढ़ता नहीं था. And whatever happened, I said okay. Somehow I did my graduation in correspondence course. मुझे मज़ा नहीं आया because I didn't like the subjects. That time law graduation started in our school college in Ganganagar. I got admission to college, and because I had the desire to prove myself, I stood first in the college for the first time in my life. Stood first in the college. और वो भी नकल नहीं मारी. जबकि बाकी सब लड़के नकल मारते हैं. अच्छा हुआ क्लैरिटी कर दी. हाँ. I went to Delhi. My all professors told me, you are a studious guy, you are very intelligent, this blah blah blah. Go to Supreme Court in Delhi. I went to Delhi, studied and did my practice for 1 year. मुझे मज़ा नहीं आया. मैंने कहा ज्वेलरी का धंधा बढ़िया था, पैसे भी हैं, इज्जत भी है, लोग भी है. तो दैट्स हाउ आई केम बैक टू ज्वेलरी एंड देन माय पैशन स्टार्ट. तो ऐसे है जी जिंदगी में जब मौका मिलता है, दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस. बाकी की बात फिर बताएंगे. एक्सेलेंट, थैंक यू, वेरी इंस्पायरिंग. सो डॉक्टर साहब बनते बनते यहाँ आ गए ज्वेलरी बिजनेस में. लेकिन हम लकी हैं कि हमें ऐसा लेजेंड मिला और हमारे बिजनेस को, ज्वेलरी इंडस्ट्री को जो इन्होंने क्रेडिबिलिटी दिलाई, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अच्छा हुआ कि वो इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में आ गए. सो आशीष जी, आपसे ही सेम जानना चाहेंगे. गुड आफ्टरनून सबको, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड माय ग्रैंडसन. इट्स माय प्लेजर. सेम पैनल. मेरी जान, मेरे इस पैनल की जान ही आप दोनों. मेरी जान निकाल दी आपने. हमारी जान वो है. Actually, I had not envisaged that I'll be joining business. Okay. So I did my electrical engineering from VJTI, which is one of the top institutes in the country. Then I joined Tata Electric Companies as a engineering trainee. Then I went on to Pune to do my MBA at Symbiosis in marketing. After that, I joined Hindustan Thompson Associates Advertising in the market research. Wow. That time I used to handle their Colgate brand monitoring. So Oh. I was always interested in marketing. But then came a time that dad said कि बॉस अभी इस रास्ते में और ज़्यादा चलोगे तो वापस नहीं आ पाओगे. So that's when I decided कि okay, let's call it a day. ये अपना माइंड एफर्ट सब किसी और के लिए करने से अच्छा जो Yes. अपने फोर फादर्स ने तब 70-80-90 साल पहले शुरू किया था, और उन्होंने इतना प्लेटफॉर्म खड़ा किया है. बिकॉज सब लोग का ये इच्छा होता है कि यू शुड क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्सन, रन्स ऑन इट्स ओन. तो ऐसा ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन हमारे फोर फादर्स ने खड़ा किया था.
और मैं मेरी एफर्ट और मेहनत बाहर कहीं लगाऊं, इससे अच्छा आई विल कम बैक टू बिजनेस एंड जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है आई विल यूज़ दैट. सो देन आई जॉइंड इन 95 और उसके बाद सब मैंने, अभी तो इनका GI और सब है, पहले वो था नहीं. सो आई लर्न एवरीथिंग ऑन द जॉब. धीरे धीरे टॉप फ्लोर पे खड़ा रह के सब करके शुरू किया. एंड हियर आई एम टुडे विथ यू सिटिंग हियर ऑन द पोडियम. सुपर, वी आर फॉर्चुनेट जो आशीष जी अब यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री के अंदर आए. हम लोग एक और फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे लेजेंड हमारी इंडस्ट्री में आए हैं. इन्होंने क्या क्या, मैं कंट्रीब्यूशन गिनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, समय लगेगा. इन्होंने लास्ट ईयर हमारे एक्स चेयरमैन थे GJC के, जो जिस मुकाम पे इन्होंने GJC को लेके आए, तो ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड था. दूसरा, जो आज जीजे शो जो हम देख रहे हैं वो इन्हीं के अंडर में चालू हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें इन्होंने ही दी है. और अब ये जीजे शो बड़े शानदार से चल रहा है और आज हम लोग यहाँ बैठे भी हैं जीजे शो के लिए. तो इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट दिया है. मैं इनको बहुत ही सम्मान करता हूँ, बहुत मानता हूँ इस बात में. मास्टरपल, आप बताइए आपके बारे में. ये हमारे यंग जनरेशन है, तो ये तो हमारे लेजेंड्स थे. अभी यंग जनरेशन से भी जाने नहीं, आपने यंग जनरेशन बताया, मगर यंग जनरेशन नहीं, हम मिडिल जनरेशन हो गए हैं अभी. क्योंकि माय डॉटर इज 21 ईयर ओल्ड एंड माय सन इज 17 ईयर ओल्ड. अभी वो सब आने वाला है. लेकिन दिखते नहीं है आप अभी वो सब मत बताइए. आप अपने लुक को देख के ही बताइए कि लोगों को. सो मैं इन दोनों से थोड़ा हट के बात करूंगा अभी. रांका ज्वेलर्स ये अभी 131 ईयर ओल्ड फर्म है, जो हम 6th जनरेशन है. अभी जो आने वाला है वो 7th जनरेशन है. ओह माय गॉड, वेरी गुड. सो हमारा एक फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि माय फादर एंड 3 ब्रदर्स, ये 4, और उसके बाद मेरे साथ मेरे कजन, आई एम द ओनली सन, मेरे साथ मेरे 4 कजन. ये 2nd जनरेशन हो गया. और अभी नेक्स्ट जनरेशन में उनके बच्चे आ गए, वो 4 लोग और हैं. तो ऐसा स्ट्रक्चर है. मगर जब भी हमारे ग्रैंडफादर ने उनके 4 बेटों को अलग किया, दैट वाज द ईयर 1996. तभी हमारे 2 शोरूम्स थे. और वो टाइम पे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम यंग जनरेशन ने डिसीजन लिया कि नाम एक ही रखेंगे मगर काम सब अलग अलग करेंगे. सो आज भी जो ब्रांड है, 13 शोरूम्स है, जो पूना में लगभग 11 है, पूना में 12 है और बॉम्बे में 1 है. तो हम लोगों ने एक ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाया, ब्रांड वो बोलते हैं ना, ब्रांड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि कोई भी शोरूम 5 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहेगा, एक दूसरे से compete नहीं करेंगे, बट विल फॉलो द सेम ब्रांड. फैमिली अबाव बिजनेस, ये हमारा आज भी है. तो आज भी कोई भी, मेरे अंकल ने मेरे को फोन करके कुछ भी पूछा तो इट्स अ रिस्पेक्ट फर्स्ट, कल्चर फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, फिर बिजनेस. एक्सेलेंट, सुपर. सो द ब्यूटी इज, आप विजिटिंग कार्ड मेरा भी देखेंगे, आई मैनेज 5 शोरूम्स आउट ऑफ द टोटल लॉट. सो आप विजिटिंग कार्ड मेरा देखेंगे, इट विल बी ऑल 13 शोरूम्स. So this is the beauty with every person working in this family, कि family above business. We have family meetings, we have periodical meetings, family outings. तो हमने मॉडल ही किया है कि अपने को करना है तो साथ में काम करेंगे, जो भी करना है, नाम सबका रहेगा, बिजनेस ये चलेगा. और जैसे आप बताएं कि हाउ डिड आई एंटर बिजनेस, तो पहले हम जो रहते थे, पहले नीचे शोरूम होता था, ऊपर मकान होता था वो टाइम पे. दैट वाज द ईयर 1992. तो वो जब भी हम बच्चे थे, वी यूज्ड टू कम टू द शोरूम, हम लोग मदद करते थे. तो द बिजनेस वाज इनग्रेन्ड, हमारे ब्लड में ही बिजनेस आ गया. तो 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही आई स्टार्टेड माय कॉलेज, तो कॉलेज वाज पार्ट टाइम एंड बिजनेस वाज फुल टाइम फॉर मी. सुपर. तो मैं 8 घंटा बिजनेस करता था और 2 घंटा सिर्फ अकाउंट्स के लिए कॉलेज जाता था, क्योंकि कॉमर्स में सर्टिफिकेशन वाज लाइक वेरी इजी. So this was one case, and when 1996 में when my dad got separated from the entire group, so he started his own showroom. So when he started the showroom, so he had given me a choice. You go and do an MBA if you want to do abroad. मगर मैंने सोचा कि नहीं, I know the business, I don't want to leave him alone. And I was so desperate for business कि मैं बोला I'll do my MBA later. Let me help you in business first. And from there we started and we grown into so many branches. So I did my MBA later in 2015, an executive MBA course with Symbiosis for 4 years. Excellent. Super. So now you're working with your father. Father is along with No, you? my father is there, but now I actively manage the business. He's taken a back seat, but still he's involved. जैसे आपको मालूम है कि इंडियन ट्रेडिशन में they don't leave the authority That we easily. will talk later. We will come into that. We will come into that. अभी मत open कीजिए suspense. We will come into that. Maitri, can you?
You are there in the next generation now. After last statement. Hi. First of all, thank you, Rajendra sir and Nilesh sir, for giving us this opportunity to be here amongst such legends and upcoming legends also. To begin with, आप लोग का इतना जनरेशन से चलता आ रहा है. आई एम जस्ट सेकेंड जनरेशन, तो मेरे पास तो ऐसा लेगेसी इतने सालों का नहीं है. बट सो इवन फॉर माई फादर, आई डोंट नो हाउ इट इज़ difficult for him or how he feels giving it to a child that is just a second generation. So I mean मेरा स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ मुझे नहीं पता, बिकॉज द ईयर आई वॉज बॉर्न was the same year my father got into the jewelry industry. Oh. So it's the same, I think we are same age. I don't know kaun bada hai kaun chota hai, to be honest. It's a sibling. So we started like that. And जैसे आपके बंगलो था, नीचे शॉप था, हमारे केस में हमारा 9th फ्लोर पे घर था और फैक्ट्री एक छोटे से गराज में बनाई थी उन्होंने. So because I was very hardly 4-5 years, तो I used to stay on 9th floor. तो मुझे ना सिर्फ 0 फ्लोर दबाने आता था और मैं भाग के ना फैक्ट्री में चली जाती थी, बट ऊपर कभी नहीं आ पाती थी क्योंकि हाइट ही नहीं थी. So I would just go to the factory and I would just look around things that are happening. And तभी ना फैक्ट्री बहुत छोटी थी, सब कुछ बहुत रॉ था, तो सब दिखता था कि अच्छा पहले स्टोन भी देना होता था, तो पापा बैठ के करते थे. तो you have seen that phase. You have seen when your father is selecting the designs. You know what kind of designs he would select. So when you're growing up, you look at your father, and I was looking at my father and I was growing up into the factory. And also during my summer vacations, मैं factory चली जाती थी क्योंकि कुछ होता नहीं था करने को. So we would end up going, I would end up going there. My dad never asked me to join, but कुछ ना कुछ करके मैं हमेशा उधर होती थी. And fortunately अब उनके साथ मैं पीछे पीछे चलते चलते मैंने उनका बिजनेस ज्वाइन किया. बट ही मेड श्योर कि मैं पहले पूरा एजुकेशन कंप्लीट करूं. सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन वाज गिवन टू मी. ही ट्राइड कि मैं कहीं और वर्क एक्सपीरियंस लूँ, बट कोविड हैपेंड. तो कोविड की वजह से आई रियलाइज कि कहीं और जाने से बेटर है पहले आई थिंक आई शुड सपोर्ट माई बिजनेस बिकॉज दे नीड मी मोर देन एनीबडी एल्स नीड्स मी ऑन दिस अर्थ. सो आई जॉइंड फुल फ्लेज्ड. आई थॉट मैं करूँगी और फिर वापस कहीं बिकॉज आई वाज स्टडिंग अब्रॉड, तो मैं बाहर जाके एक इंटर्नशिप करके वापस आऊँगी. बट देन वंस आई एंटर्ड देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड स्टिल डेट आई एम स्टिल देयर. एंड नाउ आई थिंक इट automatically you become an integral part of the company. So now whatever it is, it's just you who is doing it. Super. Firstly, I would like to thank GJC, Rajendra bhai, Nilesh bhai for this opportunity. This is the first time I'm sharing stage with my. So this is also. उनके बारे में अच्छा ही बोलना पड़ेगा आज. क्या बोलूं वही पूछ रहा था. वो तो अभी मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा. So this is the first time I'm with him and also with senior Yes, members yes. of the industry. So it's So this is also for you created history with. so it's I'm very fortunate for this. Yes. So about the question that how did I come into this field? So my father and my mother were never very. They had given me a very free hand. Said, do what you want to do, but इतने time तक ही तेरे पास this is the age where you have to decide what you want to do. So I completed my graduation from Ruia College in Mumbai itself, and after that, so my mom is a gemologist. So I had that thought कि ये gems का कुछ तो है, इसमें कुछ तो attractive है, so I have to do this. So I did gemology, and after that I was just waiting because the study का year था वो आधा में खत्म हो गया था. So I had to wait and decide what to do now. Okay. So I was just waiting and with friends, and I was just going here and there. And then one day my dad pulled me. He said, "What are you doing?" I said, "There's nothing to do right now." So he said, "There is never nothing. From tomorrow, come to office." So I was a little scared that time. I was like, I wanted to do that, but did not know how to approach it and how to plan it. So on the first day, I came in formals. I've never wore formals. I had come to office. I went and met dad. He said, meet these 2-3 people, senior people from the office. They will teach you everything. And then they called them up and they said, ये अभी आपकी अमानत है, इसको कराओ जो कुछ सिखाना है. Don't come to me.
he told me, don't come to me. They are the ones who are going to teach you everything. So I went there, and first day, his uncle, he is Nirubhav, so he was there. He was sitting in his chair there, and I went and I met him. Him being my Pardada, so great grandfather. So I met him and I said, give me blessing. I said, what are you doing here? I said, Dad told aisa. So he said, oh, like this. So that thing, what happened on the first day was very inspiring. He woke up from his, he stood from his chair. He made me sit there. I was like, no, this is not my chair. He said, no, now you have come. So you guys have to handle it. And then that was a very inspiring moment for me. And then that is how it started. And here I am now. But your interest was there, that somewhere, Yes, that interest was there. Because of gemology, because of my mom. That was a little thing which she had done. She said, this is what we do. Even when she got married, she used to come to our wedding. So you entered with your interest, with your passion. Yes. Great. तो उससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करता हूँ क्योंकि अभी जो क्वेश्चन था, he did not tell one more thing. What? That he was a serious chess player and he is an elo-rated international chess player. वाह, तालियां। अभी कुछ सनसनीखेज क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है मुझे एक चीज़ करनी, क्योंकि जब भी ऐसे मैंने फैमिली बिजनेस और इस तरह का नेक्स्ट जनरेशन के मैंने कुछ किए हैं, सब वो पिताजी के पापा के बारे में, पापा इज़ वेरी गुड, और पिताजी बोलते हैं माय सन इज़ वेरी गुड। तो इससे पहले ये गीता लेकर आया हूँ मैं, और सब आप कसम खा के कहिए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। भागवत गीता है पूरी, एकदम रियल भागवत गीता है, सच बोलना है आज। पिताजी सुने, दादाजी सुने, कोई भी सुने, इन्होंने समझा कोई और गीता आ गई है। नहीं ये रियल है भागवत गीता, रियल भागवत गीता लाया हूं मैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाष जी से शुरुआत करते हैं। सुभाष जी, Bola since is your family legacy, through its journey, how did you navigate walking alongside your brother? Now I think your brother Dr. Rajendra Bola is managing the business and other family members. Was passing your business legacy to them a seamless transition, or were there any challenges for you? देना है भाई को कैसे दूं, मेरे जो मोह माया वो भी कहीं ना कहीं अटकी रहती है। एक तो ये चैलेंज है, कोई चैलेंज था क्या? दूसरा, also do you think the company thrived under their leadership, perhaps surpassing its previous success जो आपके दौरान था, with a stronger brand image and accelerated growth now? इस पे कुछ प्रकाश डालिए। देखो, पहली जो बात रही कि वेदर ट्रांजिशन, Yes. that's the main thing. Yes. About when doing business for many years, when I came to Delhi from Ganganagar, the second story started in 1982. That the first story started in 1966. The second story started in 1982. I traveled abroad because I was involved into some service clubs and visited many associations worldwide. And when I came back, I realized, तो गंगानगर में क्या कर रहा है? दिल्ली जाओ, बड़ी जगह जाओ, बड़े काम करो। आप छोटे से काम के लिए नहीं बने हो। You have all the skills. What I saw there, the most of the people worldwide were doing. So I realized. I told my father, I want to do business in Delhi. By that time, my other brothers, one my younger brother, another brother, not the doctor. My eldest brother was a doctor practicing in Delhi at that time. My second brother was Kuldeep. He did his electrical engineering from Ranchi, Birla Institute. And I did my law by that time. My younger brother did his MCom, and the youngest one was studying in the medical college, Dr. Bola. At that time, I decided I'm going to go to Delhi and do business. Somehow we reached there, and when my father saw me, my father was always very supportive. When we came to Delhi, then he told me, how are you going to do such business in such an alien city? Who knows you here? Yeah. Nobody. He told, I am going to go with you and sit with you. I said, okay, fine.
I felt happy. At least my father is. He was always very, very dear friend with me, and we were very open to talk anything with him, including my marriage. And पंजाबी पंजाबियों में बड़ा बड़े ही मस्त होते हैं, पिताजी हो बेटा हो. यो कुड़ी लेनी है. अच्छा, चलो. In '82, when I came to Delhi, then I thought that my company name in Ganganagar was Rawalpindi Jewellers. And when we came to Delhi, there were many Rawalpindi Jewellers. Rawalpindi is one of the major cities in eastern Pakistan, eastern Punjab, where the most of the jewelers had come to the northern part of the country. So I saw many Rawalpindi jewelers. I told my father what we should do. Then we called a consultant, and after talking to each other, but my mind was always, we are Bholas, we must have something to with Bhola. Then I saw so many Mera sons, this sons, those sons shop. I said Bhola sons is the name. And that's how Bhola sons started. मैं तो सोचता था कि आप भोले शंकर के पुजारी हैं इसलिए. तो उनके पूर्वज हमारे वही थे. तो 82 में जब it was quite challenging, no customer, nobody knows us. We had so robust business in Ganganagar, and so everybody was asking in Ganganagar, Subhash Bhola, such a big jeweler, this. And here even the Europeans don't understand that who is this guy. And suddenly, the big challenge, so anyhow, we started doing efforts. Important is the persistent effort. That's the important thing. Some vision is important, some persistent effort is important. तो करते करते जो है 84 में my younger brother Dr. Bhola, Dr. Rajendra Bhola, who was in the medical college and passed out his medicine, and then he was doing his post-graduation in pediatrics. Whereas the people don't get admission to the colleges, he was there and stood first in the medical college. He came one day in 84 and told me, मेरे को ये धंधा करने का है. मैंने कहा यार मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मुझे तो बनने नहीं दिया. तू डॉक्टर बन रहा है, मेरे धंधे पे क्यों यार तू आ रहा है? ये पहले ही काम इतना नहीं है. Who is going to? We need more income. Yes. We need more work, and we had hardly enough work, but not that much work. There were two great people are sitting together Yes. with the father, with the mentor, Yeah. to do business. Anyhow, when he came for a few days, he was just lingering here and there, still interested into some medical things. And then I thought we have to do some business. Then one day my consultant came to and told me, Mr. Bhola, if you want to do business, this retail is not enough for you. Go to exports. And export income was those days tax free. और अपने को जो दूसरा पैसा बढ़ा था उसको भी सारे को सीधा करना था. तो करते कराते हमने पैसा भी ठीक किया, एक्सपोर्ट शुरू. I traveled abroad for 2 months ticket with my wife, और एक एक जगह सारा लंदन, न्यूयॉर्क, सारा अमेरिका, सारा कनाडा घूम घूम साथ में अपने बैग उठाए, टेनिस एल्बो हो रही है. पर एनी हाउ व्हेन द डे, सब जब हम एंड ऑफ द स्टोरी जब वापस आए तो वी हैड द ऑर्डर. सो कैसे एफर्ट करने से आपका कैसे काम शुरू, ऐसे डॉक्टर साहब आ गए. अब बात यह है कि ये तो आ गए हम. अब रही बात की ट्रांजिशन. ट्रांजिशन की बात की ये है कि जब when my brother came, we thought that let's do, because the business, export business was thriving those days. We had a lot of business, lot of manufacturing. We are all from the jewelers family, from Sunar family. So we knew everything, how to manufacture jewelry, how to test jewelry. We are masters of jewelry manufacturing, which I also personally learned when I was in Ganganagar, to how to manufacture jewelry as well. So when that started, we separated business into two parts. When it came to a good stage, we separated it into two parts. One is export wing, one is retail. So, but we were helping each other under the same brand name. But after a few years, then one day I was sitting with my consultant. मैंने कहा यार सारा धंधा तो एक्सपोर्ट में चला गया,
कमाई तो वहीं हो रही है, हम तो सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं और कमाई हमारी तो कम है। तो कहने लगा तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा करो आप लोग ना अपने बिजनेस को अलग अलग करो। और मैंने फिर एक दिन उसकी बात मुझे समझ में आ गई, मेरे ब्रदर का भी इधर ध्यान नहीं था, उसका ध्यान यही था कि वो काम बहुत कर रहा है। बात शादी भी उसकी हो गई थी, उसकी वाइफ भी काम कर रही थी, तो आई सॉ दे वर डूइंग एनफ वर्क। तो मैंने उसको बोला भैया अपने ना बजाय इसके, आई हैड सर्टेन पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम हियरिंग फ्रॉम अदर, मैंने कहा अपना धंधा सेपरेट कर लेते, ये एक्सपोर्ट का विंग तेरा, ये रिटेल का मेरा, और सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने जो साइन कराने हैं मुझसे करा लो। वी हैड सर्टेन इश्यूज, बट वो अकाउंटेंट का ये लेना है, ये देना है, ऐसे करना है। मैंने सब अकाउंटेंट को बाहर निकाला, हम दोनों भाई बैठ गए एक केबिन में। मैंने बोला भैया तुमको क्या लेना है या मुझको क्या देना है? बैठ गए, उसने कहा इतना। मेरा अकाउंटेंट बोले नहीं हमको लेना है 25 करोड़, वो कहे मुझे 10 करोड़ देना है सर। तो बड़ा मुश्किल। मैंने कहा ओके ओके, तो हमने कर लिया, जो भी था करके बाहर आए, हमने भी सब कंपनी सेलेक्ट कर ली। ये तो ठीक एक स्टेज, उसके बाद उन्होंने गोल्ड शूज में काम शुरू कर लिया, हमने इधर अपना बढ़ा लिया, सब कर लिया। अब आई जो प्रेजेंट ट्रांजिशन, मुझे थोड़ा बोलने की आदत ज्यादा है। प्रेजेंट ट्रांजिशन वो सुनने के लिए ही बैठे हैं। प्रेजेंट ट्रांजिशन के अंदर क्या हुआ कि वन फाइन डे about 10 years ago, I realized that I have 3 daughters who were part of my business at some time, but no longer were doing interested into the business. So I thought, who is going to inherit or succeed to my business? So I started talking to people, to consultants, to my brother. They had enough business, they didn't really wanted to do anything because they already had separate business. But the good thing was we kept the same name because we were not interested कि अपने को किसी और को देना है। So one fine day about 5, 6, 7 years ago, we went to one of the courses in London School of Economics in China, and the other day we had another classes in the England into the similar colleges. And when we came back, we realized that succession was the part of the discussion. So I thought, what to do? I talked to my brother. मेरा बिजनेस ले लो और मेरे को छुट्टी कर दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा इस पे स्टॉक है, you just give me that money and that's it, I am okay. And he said, why don't you control this? I said, no, I want to give you full independence because I had seen in the world that when you don't inherit, when you don't succeed, when the succession has problems, in most of the cases, then that problem creates the problems in their personal life, in their brother's life, and so it creates a lot of nuisance and going to the courts and so many other things. So I realized that it should be very smooth. And one fine day, my brother's son, Dr. Bhola's son, Abhinav Bhola, very intelligent guy, I told him, Abhinav, you take every business what I have, and I want to relax. He said, on what terms, this. So I called my chartered accountant. I told him, this is my desire. Ask them what they want. And we found out the means. And this is how it suddenly happened. And at the last stage, during Corona period, I was very impatient. मैंने कहा यार छोड़ो ना, बहुत हो गया है काम, कितना करना था कर दिया है और कितना करेंगे। तो मैंने उसको बोला, ब्रदर को मैंने कहा भाई ये सारा बिजनेस आई एम गिविंग इट टू यू and you handle this business. If there is any income, you give it to me, otherwise you enjoy. But he said, no, I'm not going to handle this business. I cannot control so big business. In Gurgaon also, we had 2 showrooms in Gurgaon and export business. We do not have enough skills to handle this, so I had to stop doing business here. We sold this property, but the total brand was transferred to them. So this is how the transfer became, and it was very smooth and very nice, which is very important. We'll talk about it later. Excellent. This is a excellent example जो सुभाष जी ने शायद गीता का असर हुआ है।
जो अंदर तो सुभाष जी ने बहुत ही एक्सेलेंट एग्जांपल्स दिए हैं। ये हमारे सबकी लाइफ में हो सकता है, जो इनके वो है चैलेंजेस आते हैं ब्रदर्स में, फादर्स में, अंकल्स में। तो ये जो ट्रांजिशन है फैमिली बिजनेस का, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, जो सुभाष जी ने इतने बेहतरीन तरीके से हैंडल किया, मैनेज किया। और आज भोला सन्स बहुत बड़ा नाम है, बहुत ब्रांड इमेज है, बहुत ही वो भोला सन्स आज बहुत फैल रहा है। बहुत आप दिल्ली में जाओ, गुड़गांव में जाओ, आज बहुत बड़ा नाम है, इमेज है, एक लेजेंडरी इमेज बनाई है। तो ये वेरी गुड एग्जांपल टू लर्न फॉर अस सुभाष जी का। आशीष जी, आपसे ट्रूली रियली इंस्पायरिंग टू विटनेस योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो हम देखते हैं इन योर फैमिली बिजनेस, स्पेशली लेट मी टेल यू एज द यंगेस्ट ग्रैंडफादर. He is a grandfather. Does he look like a grandfather? And I have got the proof also. Grandson is sitting there. So proof के साथ रखा हुआ है. We are eager to know about your experiences working with almost 4 generations, and how you see the future with this next generation taking the lead. मेरे क्वेश्चन थोड़े हैं आपके, क्योंकि आपकी फैमिली 4 जनरेशन है, तो मेरा क्वेश्चन भी 4 जनरेशन के होंगे. कुड यू शेयर सम इनसाइट्स इनटू द डायनामिक्स ऑफ वर्किंग विद योर फादर, अंकल्स, ब्रदर्स एंड करंटली वर्किंग विद सन एंड ग्रैंडसन? आई एम श्योर यू विल वर्क विद 5th जनरेशन एज वेल. शादी हो गई नील आपकी? ओ, तो फिर तो ये 5th जनरेशन के अंदर 100% बचा हुआ है, नहीं हुआ तो फिर तो ये 5th जनरेशन के साथ काम करेंगे. उधर ये हमारे है ना इंडस्ट्री के अनिल कपूर है, जो माँ के साथ भी हीरो बने हैं, बेटी के साथ भी हीरो बने हैं, और आगे पोती के साथ भी हीरो बनेंगे. तो ये हमारे अनिल कपूर है इंडस्ट्री के. तो आई एम श्योर यू विल वर्क. So we also, I would like to know what notable differences have you observed between each generation, क्योंकि आपने फादर से काम किया, ब्रदर्स, अंकल्स, फिर सन, फिर ग्रैंडसन. सो व्हाट इज अ नोटेबल, और ये हमारे लिए बहुत लर्निंग की चीज है कि आप यहाँ पर हो और इतने जनरेशन का एक्सपीरियंस आपके पास है. तो वी वांट टू नो, एंड हाउ डू यू परसीव द नेक्स्ट जनरेशन रोल in carrying forward the legacy of Aman Hari Pete? Is it challenging working with them or an opportunity to further elevate the business? तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे. और मेरे को समझ में आया, आशीष जी इतने कूल और काम है ना, आप लोग कुछ लोग एक्सपीरियंस आप जानते भी होंगे, इतने कूल और काम है. मैंने इनको एक टाइटल दिया था, साइलेंट किलर. ये बहुत कुछ, आप इनकी कितनी भी आप इनकी बुराई करो, कुछ करो, ये इनको चेहरा स्माइलिंग रहेगा और शांति से जवाब देंगे और ऐसा पंच लाइन मारेंगे आपको कि आप सीधा मार देंगे. साइलेंट किलर. तो ये आशीष जी की पहचान है. बहुत ही ये मेरे फेवरेट है, वन ऑफ द मेरे फेवरेट है. तो आप जरा, थैंक यू सर. भोला जी का आवाज जोड़ रहा है. तो आशीष जी से भी बहुत हमें सीखने की बात है, बहुत लर्निंग है. उनके पास 4 जनरेशन का एक्सपीरियंसेस है, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे. तो आशीष जी जरा आप रोशनी डालिए. I'll keep it short because यस टाइम का भी शॉर्ट हो रहा है. तो थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स राजेंद्र जी. लेकिन आपने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है, तो अभी आई हैव टू थिंक अ लॉट डीपली. यस, बट yes, you are right. I have worked with my uncles who were probably 40-50 years elder to me. My father, my brothers, cousins. I don't have a real brother, but cousins, my nephews who are sitting there, and my grandson, who is as good as a nephew. My son has just joined, but he's not, actively yet involved. हमने क्या सीखा या हमने क्या नेक्स्ट जनरेशन को दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट. वास्तुपाल जी भी कंफर्म करेंगे कि इट इज़ नॉट लाइक चलो आज बैठो मैं आपको ये सिखाऊंगा, ऐसा करो ऐसा मत करो. इट इज़ नेवर दैट इन फैमिली बिजनेसेस. बोला जी, यू विल एग्री. ये विदाउट सेइंग लर्निंग आ जाता है. व्हेन यू से कि एक कोई सिचुएशन या घटना होती है, तो हाउ योर अंकल इज रिएक्टिंग टू दैट. यू आर अ बाई स्टैंडर. आप देख रहे हो कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया.
कोई एम्प्लॉय का कोई इशू हो जाता है तो हाउ योर फादर इज रिएक्टिंग, कैसे उन्होंने रिजॉल्व किया। या देर आर मेनी अ टाइम्स ऐसा सिचुएशन आता है कि बिजनेस को फर्स्ट रखना है, फैमिली को फर्स्ट रखना है, प्रॉफिट को पहले रखना है कि अपना इथॉस को पहले रखना है। तो व्हेन यू आर इन योर इनिशियल ईयर्स इन बिजनेस, आप साइड में खड़ा रह के देखते हो, ये भी देखता होगा कि ऐसा हो गया, आशीष अंकल क्यों भड़क नहीं रहे उसके ऊपर, क्यों चिल्ला नहीं रहे, या कभी कभी ये क्यों चिल्ला रहे हैं। सो ही इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट व्हाट इज़ द फैमिली इथॉस। तो वो मैंने मेरे अंकल से सीखा, पिताजी से सीखा, मेरे ब्रदर से भी सीखा, और आज मैं मेरे नेवी और ग्रैंडसन से भी सीख रहा हूँ। आपने ये कहा कि व्हाट वाज द डिफरेंस, तो जो हमारी पहले वाली जनरेशन थी, मतलब अंकल या दादाजी, तो वो बिजनेस को ना उसे पूजा की तरह करते थे। उनका बिजनेस की तरफ देखने का नज़रिया ही अलग था। सुबह समझो 10 बजे आना है तो लाइक पूजा सुबह 10 बजे आते थे, 2 बजे लंच, तो 2 बजे लंच, 3 बजे वापस शोरूम खोलना है। तो रिलीजियसली वो करते थे। उसमें एक क्या कहते हैं, कंटिन्यूम था उसमें। जैसे हमारे जनरेशन में आया तो हम लोग थोड़े ज़्यादा रेस्टलेस होने लगे कि बस इतना ही क्या है, क्योंकि जो पहले का 70-80 ईयर्स ऑफ बिजनेस था, दैट वाज सस्टेनेंस। वो कंटिन्यू एक ही तरीके से आप काम करो, कस्टमर को सर्विस दो, और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया, वो जो 80 सालों में उन्होंने किया, वो हमको आगे 20, 25, 30 सालों में वी कुड एक्सपांड ऑन दैट। अगर वो डिलीजेंटली काम नहीं करते, अगर वो रोज़ 10 बजे आके रोज़ जो करना था, तब इतना ग्रोथ था नहीं। गोल्ड कंट्रोल भी आया, तब भी उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ थे हमारे, नंबर ऑफ बिजनेस थे, तो गोल्ड कंट्रोल में सबको काम कम हो गया था, लेकिन उन्होंने तब अपने एम्प्लॉयज़ का कैसे ख्याल रखा, कैसे अपना बिजनेस किया डिलीजेंटली या मॉरली राइट किया, वो हम साइड लाइन में बैठ के देखते थे। नेक्स्ट जनरेशन में हमारा जनरेशन है ना, वो थोड़ा रेस्टलेस हो गया कि हमारा इतना नाम है तो वी शुड कैपिटलाइज। मार्केट्स भी ओपन हो गए थे ऑब्वियसली, मनमोहन जी के टाइम पे 90s में मार्केट्स ओपन हो रहे थे, गोल्ड कंट्रोल निकल गया था। तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपांडिंग। हमारा इच्छा हो गया। नेक्स्ट जनरेशन वाज एजुकेटेड, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं इंजीनियर हूँ, कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से आया। सो वी कुड एक्सपांड। तो हम लोग जब अंकल या हम भाई या सब लोग बैठते हैं, तो एक सेंट्रल थीम हम लोग पकड़ के चलते हैं कि वी हैव टू लुक एट व्हाट इज़ राइट फॉर द कंपनी एंड कीप द फैमिली टुगेदर, और कीप द फैमिली फर्स्ट, जैसे इन्होंने कहा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फादर लड़के को बोलता है ये मत कर, ही इज़ राइट, या उसको मालूम है कि मेरे लड़के को बुरा लगेगा, फिर भी व्हाट इज़ राइट फॉर द कंपनी, व्हाट इज़ राइट फॉर द फैमिली, वो पिताजी बोलते कि तू चुप बैठ, व्हाट ही सेइंग इज करेक्ट, मैं तेरे को घर पे बता देता हूँ। दैट इज़ ऑलवेज द केस। और जो हम लोग एम्प्लॉयज़ के साथ करते हैं ना, कि किसी को प्रेस करना है तो पब्लिकली करो, और किसी को गलती निकालना है, स्कोल्ड करना है तो प्राइवेटली करो। दैट वर्क्स इवन इन द फैमिली, इन फैमिली सेटअप्स, और इट इज़ इवन मोर क्रिटिकल इन द फैमिली सेटअप्स, क्योंकि वो रिलेशन एकदम क्या कहते हैं, डेलिकेट होते हैं। अगर मुझे मेरे भाई के सामने कोई मेरा अंकल स्कोल्ड करता है, तो मैं मेरे भाइयों के सामने, मेरे नेव्यूज़ के सामने मैं ओछा हो जाता हूँ। तो इट इज़ वेरी क्रिटिकल फैमिली रिलेशंस में। हमें पब्लिक में मतलब इन फैमिली गैदरिंग्स आप कैसे बिहेव करते हो, ये मैंने मेरे सीनियर जनरेशन से सीखा। आपने कहा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका क्या है, तो दे आर इवन मोर रेस्टलेस देन वी आर, लेकिन दे आर इवन मोर फास्टर इन ग्रास्पिंग थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। उनको हमारे प्रीवियस जनरेशन से हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, इनका हमसे बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, इंटरनेट वॉट एवर, और दे आर एक्सपोज टू होल लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, ये बच्चों से काम करता हूँ, तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट कि आज मैं इनसे क्या सीखूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आवर जनरेशन, एक बियॉन्ड द पॉइंट हमारा लर्निंग धीरे धीरे जो स्पॉन्ज होता है ना, वो एक बार पानी सोक करने के बाद उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, यू कैनॉट एब्जॉर्ब न्यू थिंग्स। ये तो फ्रेश स्पॉन्ज है, जितना चाहे फटाफट पानी सोख लेते हैं, नया चीज़ ले लेते हैं, तो उनसे मैं निचोड़ ले लेता हूँ कि क्या है, एंड दे आर डूइंग दैट। लेकिन जो यंगर जनरेशन है उनको लगाम अपने हाथ में रखना पड़ता है।
बिकॉज वो शुरू में भागते हैं, उनको पता नहीं होता कौन सी डायरेक्शन में जाना, क्या स्पीड से भागना, कहाँ पे डिफ़िकल्टी है, तो वो लगाम हमारे हाथ में रखना पड़ता है। लेकिन जो पावर और एनर्जी यंग जनरेशन आता है, दैट वी हैव टू ड्रॉ ऑन। आई थिंक दैट इज़ माई लर्निंग वर्किंग फ्रॉम विथ 4 जनरेशंस। जो सीनियर जनरेशन का ठहराव था वो इम्पोर्टेंट है, Yes. अगले जनरेशन का स्पीड है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो आई एम द प्रॉब्ली द फुलक्रम विच आई हैव टू कंट्रोल both the thing, give them their knowledge and take energy from them. I think that's all. But you agree on this, what you said, कि do you trust them that they will take your legacy further, elevate your legacy? Absolutely, absolutely. जो ग्राफ होता है ना ऐसे नहीं जाता है, ऐसे जाता है। Yeah. So you trust them. They are at this juncture. But You have a confidence and trust on them. Definitely. आज भी कोई काम करता है, we independently give them आप करो। And you feel relaxed that your legacy is You going can- to be you can going in never a relax better in- and safe hands. When you are in business, you can never relax. Even in case of you can never relax and you should not relax. Yes. Because business में एक छोटी mistake can cost you a lot. So you have give them freedom, but you have to watch. But हर बार आप मूवी Till में the काम time they are. कभी तो उनको भी हीरो बनने देने पड़ेगा मूवी No, में। they are कभी- already hero in their own lives. No, I'm Thank you. generally telling you But have to it's give a- them freedom, but you have to overlook what is happening. But I'll tell you, in the Neil, initial years. but I'll tell you, Neil, you have a great learning from your grandfather, and you are so lucky that you will be learning a lot from him. Of course, you are talented, skills. You have your own talents with you, which is going to enhance it along with the experience what you are learning from your uncle. He is a great, great knowledgeable person, great experience, and from generation he has learned and he worked with all the generation and is now with you. So it's a very, very fortunate for you. So now coming to and this is a very for us also, it is a great example of ये दो legend जो share किया है, इनकी कुछ अलग ही तरीके से इन्होंने share किया, जो हमारे लिए एक अलग से ऐसी situation भी आती है हमारे, तो हमको सीखने को है। और इन्होंने जो share किया, किस तरीके से transition होना चाहिए, किस तरीके से knowledge जाना चाहिए, किस तरीके से लगाम को अभी भी थोड़ा पकड़ के रखना चाहिए, कि अभी तक वो घोड़ा रेस का घोड़ा नहीं बन चुका है अभी, तो तब तक रेस का घोड़ा भी तब तक लगाम पकड़ने की, तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत ही हमें लर्निंग है और एक्सपीरियंस है, हम भी लर्न कर रहे हैं। भाई, बट हैट्स ऑफ टू यू बोला था कि आपने जो हैंडओवर किया, आपके चेहरे पे 2 पैसे की भी शिकन नहीं, दिल खोल के आपने Yes, किया था। yes. वो लाखों में एक लोगों को जमता है आपको। Yes. लोगों का आशीर्वाद है जी। But this is what Subhash Bhola ji is. This is what Subhash, I know him, this is what he is. So now coming to the young panelist, how do you navigate working within the family legacy, considering potential challenges stemming from conservative mindsets, differing opinions, and traditional business practices they do? Additionally, do you perceive any hesitation from your family in full entrusting the legacy? आपके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है क्या उनका लेगेसी बिजनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन? वो देने में हिचकिचाहट हो रही है क्या, या कुछ ट्रस्ट अभी तक नहीं बैठ रहा है क्या? ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है? कंसिडरिंग द हार्ड वर्क, बिकॉज इन लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है, इतनी मेहनत करी है, और इस एम्पायर को, इस लेगेसी को जो खड़ा किया है, तो डेफिनेटली उनको इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो वो चैलेंजेस रहते हैं. So what you think about this? So जैसे फैमिली बिजनेस में आपने बोला है कि कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमने जैसे इनके जैसे ही हमारा भी जो सेपरेशन जब भी ग्रैंडफादर ने किया था, एक रूम में 1 घंटे में उन्होंने इसका ये शोरूम, उसका ये शोरूम, तेरा ये प्रॉपर्टी वैसे करके ख़त्म कर दिया. तो दैट वाज एन आई ओपनर फॉर अस कि फैमिली कल्चर जो आप बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फोर फादर्स, तो दैट रियली वर्क्स. सो वो टाइम से आज 30 इयर्स वी हैव सेपरेट बैलेंस शीट्स. आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ग्रुप में चार ग्रुप है और 4 ग्रुप के अलग अलग बैलेंस शीट्स है, ऑल अंडर वन नेम. नॉर अ सिंगल रुपी इज ओन्ड बाय, मेरा कोई पैसा मेरे ब्रदर के बैलेंस शीट में ना उसका मेरे बैलेंस शीट में है. इतना क्रिस्टल क्लियर है कि इट्स फैमिली अबाउ मनी. सो वो हमने डे 1 से वी हैव, एंड आई हैव बीन लर्निंग फ्रॉम माय अंकल्स आल्सो. सो देयर हैव बीन सिचुएशन, जैसे आपने भी गीता पे हाथ रख के बोला है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो इनसाइट्स अभी ये जो हमारा वी हैड अ लॉन्ग विजन.
we had a long vision कि we have to see our brand going. We don't have to compete among each other. So let us compete with our competitors outside. So under one umbrella, all our expenses, जो marketing and business expenses got divided by the number of showrooms. So that advantage we had. Yes. So anything in our family, we have a doctor who is now entered business. We had an engineer who was into business. We have an advocate. We have a chartered accountant. We have everyone. So we have one in who's good with income tax also. So वो advantage है with a family business के whenever you need an expert advice, it's in the family. Because your bond is strong, because तो आपको कभी किसी से और ego सबसे important है कि you have to keep your ego aside. क्योंकि जो whatever is good is yours, सब अपना ही है. Yes. So their happiness is your happiness. If you try to build that in you, you have an amazing future. It's not easy also, but it's an amazing future. तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ उनकी थिंकिंग से, आपकी थिंकिंग से, उनके ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव नेचर से, तो कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है. तो हमारा जो एल्डर जनरेशन है, लाइक मेरे अंकल और मेरे फादर, वो एकदम हाई टेम्पर्ड है. तो जब भी कोई हमने देखा एज किड्स, लाइक उनके आर्गुमेंट होते थे कस्टमर से, तो दे 2-3 आर्गुमेंट के बाद तो वो चिढ़ जाते थे उनके ऊपर. तो वो एक लर्निंग पार्ट था, उनको वो कैसे करना है. अभी एक भी नहीं होता है. तो बहुत बार मैं डैडी से आर्ग्यूमेंट जब भी बात करता हूँ, देखो आपके जमाने में इतने आर्गुमेंट रोज के होते थे, आज हमारे जमाने में एक भी आर्गुमेंट नहीं होता है. और दे ऑब्वियसली दे सी के वेयर वी हैव टेकन द बिजनेस नाउ. सो जो कॉन्फिडेंस आप बोल रहे हैं उनको, अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स हमने बताए हैं, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है. द वे वी हैव स्ट्रक्चर्ड, लाइक पहले जो बोलते थे कि सब हम करेंगे, जो अपना जो वैल्यूएबल बिजनेस है उसको कभी उन्होंने स्ट्रक्चर करने ही नहीं दिया, कि एक जमाने में वही चल. जो हमने वी गॉट एवरीथिंग इनटू स्ट्रक्चर, सिस्टम्स, वाइट जो बिजनेस, जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस पहले जो कैश में होता था उसको कन्वर्ट करके हमने वाइट में लाया. तो दिस इज ऑल द एडवांटेज व्हाट वी हैव गिवन टू देम विद आवर जनरेशन, एंड वी आर होपिंग कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन हैव डेफिनेटली विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम हियर. So there were a lot of incidences where my uncle used to call me and he used to be very unhappy with certain decisions of my father, ये वो. So वो जो critical point रहता था where the family rifts और family ये चालू होने के start, मतलब आपको मालूम है कि इधर से it would have taken some other tangent. So there you have to play your role, how to convince both the parties and make it a win-win situation for us. Exactly. So this understanding will only come with a family bond, family culture, family legacy. ये आपको you have to inculcate in you. Super. So you have to look at a longer picture. So there have been lot of incidences जब भी कोई ज़्यादा ही any of my cousin would be little bit more dynamic with some certain schemes in his showroom and with certain how to promote his individual brand. So वो situation में when it is a growth situation, so we used to take a collective decision, let us be a part of it. So you see, when you look at a larger picture, spending little amount now for the larger profit is always beneficial in the long run. So I have seen those incidences. Let me be also part of it. I will also contribute to it. Let us all. So when you see growth for everyone, if someone has a dynamic idea, be a part of it, rather than competing with him, rather than disagreeing with him, and rather than entering into an argument. So this leads to a rift. Excellent. Well said, Vasu. So these are all my personal experiences. So we look at a very larger picture, and I'll tell you with confidence that because of my family being together, I am so relaxed that I can go anywhere, because I know that wherever anything happens, my entire family is there around. Excellent. Super. Maitri, would you like to share the same thing? Yeah. So, because you have already come from an established family now, you have a different level of confidence. And as you said, Ashish sir, कि हमारा ना स्पीड ही अलग होता है. हम जो जनरेशन है ना, यंगर वन, वो फरारी चलाते हैं और पप्पा दादा टोयोटा चलाते हैं हमारे घर पे. So when you started, like when I entered, I was in full race. Oh, now I will take it ahead, because you're full with education, confidence, everything on forefront. You just want to come in and want to learn as soon as possible, because you're a quick learner. But we as a younger generation sometimes don't understand कि हमारे parents ने भी बहुत कुछ सीखा है अपने experiences से. So they will also gradually give it to you. They will not just hand it over to you. So you have to be a
like I had to be a patient learner, observer first before taking in the second generation coming in. You had to see उन्होंने जो देखा and वो लोग भी है ना eventually, like in my case my father was very, because he didn't have a legacy to take in, so even he didn't know how to pass it on. Plus he is also very young, so he is very flexible. वो जब अभी आप लोग का ही generation है, जैसे आप लोग बहुत flexible हो अपने, मैं आपके जनरेशन में हूँ. okay, but you guys are very flexible to give in the kids. Like I remember when few years back, not a long time ago, gems and jewelry industry was considered as very conservative industry, क्योंकि वो लोग है ना कुछ डेवलपमेंट करने के पहले ना बहुत बार सोचते थे. Yes. In fact, when Bluestone came in as an e-commerce, it was a big thing for them, because it was like, oh, e-commerce in jewelry, how will people buy gold online? Yeah. But now, if you know, like yesterday we had a seminar for AI, which is way ahead of time for jewelry industry also. Yes. Yes. So this is an entire generation shift that we are able to see right now, that how the upcoming generation is, or even the previous generation is willing to speed themselves up, अपना speed बढ़ा के अपने आप को updated रख रहे हैं, and that is because of the fusion of the previous generation's support and the current generation's willingness to do something on a great level to take it ahead. Exactly. Very well said, Mathuri. You highlighted the power of young talents, the power how they can bring more technological things and expertization and new changes, and how you fit and enhance with the traditional business, what experience, where the name brand has been, and enhancing the brand into next level. The time changes and you are taking as per the time changes. So excellent, well said. This is also one of the learning for the next generation, that how what she said, it's really learning thing from. Yes. So Neil, now सब शेयर करो यार, चैलेंजेस वैलेंज शेयर करो. दादा बैठा है, कोई बात नहीं, दादा कूल काम है वो एकदम. तो शेयर करो क्या चैलेंजेस थे. सो जैसे 4 जनरेशन काम करना इज नॉट अ easy thing, to Yes, be very honest. exactly. So, everyone has their own set of beliefs, everyone has their own set of working style. जैसा उनका है वैसा हमारा वर्किंग स्टाइल एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, पर वो एस्टैब्लिश हो रहा था. सो व्हेन इट इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, एज ही सेड, वी आर रेस्टलेस, वी आर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसको 2 मिनट लगता है, आप 15 मिनट क्यों लगा रहे हो, Yes. 2 मिनट में ख़त्म करो. तो ये मेरा माइंडसेट रहता था पहले. तो अभी मैं कुछ सवाल पिताजी से कर सकता था, कुछ सवाल चाचा से कर सकता था, पर हर एक से तो मैं सवाल चाचा तो, क्यों बोलते हैं इनको, ये तो दादा है. दादा है, मैं पहले भी अंकल चाचा बोला बोल- आपने इनको. मैं चाचा बोलता हूँ. वो बैठा है, वो मेरा चाचा इन्होंने है. बोला कि आपको अंकल बोलने का, कि मैं दादा ज्यादा उम्र का लगूंगा. वो बैठा है, वो मेरा चाचा है, पर वो मुझे भाई बोला था. अच्छा. तो सब ऐसा मिक्सचर है एकदम. तो कुछ सवाल पूछता था, तो मुझे भी बाद में पता चलने लगा कि इनको इतना सवाल पूछूंगा तो वो बोलेंगे अब तू काम करने दे, अभी सवाल पूछने के लिए घर पे आ जा. सो देन वो एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश होने को थोड़ा टाइम लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ये मेरा स्पीड ऐसा है तो मैं गलत हूँ, या वो सही है, या वो गलत है मैं सही हूँ. तो बाद में मुझे पता चला कि दोनों अपने जगह पे बराबर है. हमको क्या फैमिली बिजनेस है तो सबको संभाल के चलना पड़ता है आगे. तो वही चीज़ में मेरी माँ मुझे ये चीज़ में बहुत अच्छे गाइड करती है. तो मुझे जब ऐसा सवाल आता है तो मैं एज अ थर्ड पर्सन ओपिनियन में उनको पूछता हूँ कि ये ऐसा कुछ सिचुएशन अभी मुझे फेस हो रहा है, तो हाउ शुड आई डू इट. सो शी टोल्ड मी एवरीवन इज अ डिफरेंट सेट ऑफ इंडिविजुअल. उनके बिलीव्स अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है. तो तुम सबको एक ही सिचुएशन में मत डालो. वो सिचुएशन के लिए वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो तुम उनके हिसाब से वो सिचुएशन में चलो, तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा. सो दैट थिंग इज देयर विच टुक मी क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम कि ये तो इससे तो काम लेट हो रहा है, मैं कर रहा हूँ तो जल्दी हो रहा है. बोले नहीं, तू उनको बोल सकता है क्या ये चीज़ हो सकती है. I can't tell him like that because it is out of respect. It is also out of respect for age and for maybe 40-50 years they have worked in this. मैं कैसे बोल सकता हूँ उनको, मैं तो अब भी आया हूँ कि ये गलत कर रहे हो आप. That is completely wrong on my basis. So I try to get inputs कि कैसे किया जाता है. तो मैं कभी कभी
देख के, क्या वर्क प्रेशर देख के कि ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो कैसे काम किया जाएगा, वो बोले मैं बताता हूँ बाद में. सो आफ्टर सम टाइम आई गॉट द हैंग ऑफ इट एंड इट हेल्प अ लॉट. मेरा स्पीड कम करना भी पड़ा मुझे थोड़ा. सो तो अभी दादा ट्रस्ट कर रहे हैं फुल एकदम आपके ऊपर, और ट्रस्ट मतलब तो चैलेंजेस ज़्यादा आपने trust शेयर नहीं नहीं. किए, मैं चाहता था कुछ और शेयर नहीं, करूं. ट्रस्ट तो वो Challenges ज़्यादा करेंगे share नहीं क्योंकि किया. वी आर फ्रॉम, वी हैव द सेम ब्लड, सो दैट ट्रस्ट विल बी देयर. बट उनको वो ट्रस्ट रखना इज आल्सो माय Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yes. कि he has given me that trust कि अब ये करेगा, पर अगर मैंने वो गलत किया तो वो ट्रस्ट चला जाएगा. सो Yes. आई हैव टू कीप ऑन ensuring that trust is there. Yes. सो जैसे उन्होंने बोला कि कभी कभी वो कुछ चीज़ पे जो बोला उन्होंने लगाम रखना पड़ता है. सो आई ऑल्सो हैव टू सी टू इट दैट कि आई एम नॉट आउट ऑफ माई बाउंड्रीज एंड कि बाबा ये बोला है सो ही हैज गिवन मी दैट फ्री हैंड, हिम माई अदर अंकल्स गिवन मी द फ्री हैंड टू डू इट. बट आई ऑलवेज सीक देयर ओपिनियन कि सी दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई एम गोइंग टू, आई हैव थॉट दिस इज गुड, प्लीज ओपाइन ऑन दिस क्या है. So you have authorities, decision power given some to some areas. थोड़ा है पर फिर भी आई ऑलवेज कंफर्म विद देम कि बाबा थोड़ा है, बहुत वेल सेड, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. so but I always confirm with them ki this is what I've decided, then they give their very Excellent. good inputs. Super. You know, Rajendra it's bhai, very very interesting. can I come in? What I tell, अभी आपने जो बोला कि 4th generation वगैरह, तो फैमिली बिजनेस में काम करना इज़ लाइक वर्किंग इन अ जॉइंट फैमिली. घर अगर साथ में है तो एक प्रिंसिपल है, अगर वो फैमिली में भी कोई रखता है या फैमिली बिजनेस में रखता है तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. एवरीवन हैज़ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. हर एक का, मेरा भी नेगेटिव्स है, इसका भी है, इनका भी है, सबका है, और सबका पॉजिटिव है. अगर आपके फैमिली में हर एक आदमी का सिर्फ पॉजिटिव्स पे आप फोकस करो ना, I focus on his positives, he focuses on his positives, then everything goes up. The moment in family or in family business, everyone starts focusing on negatives of others, Yes. गाड़ी नीचे जाती है. This is, yes, I agree with you, Ashish bhai, and this is really very thing that they share their experience, legends, and then the young what they shared, it's a different learning and really well gelling with each other, and this is a way the transition should happen, and that's why the understanding what the young panelist is taking from there and understanding their experience, understanding them, going into their shoes and understanding their, that is the what the young generation has to do, and then enhancing their expertization. So this is the best examples these people have given. So my last questions, and very time is also running fast. नीलेश जी मेरे को बहुत घूर रहे हैं कब से, तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे. सुभाष जी और आशीष जी से, दोनों से एक ही क्वेश्चन है कि ये सब हमने आज सुना, एक्सपीरियंस किया, आपके चैलेंजेस और आपके यंग जनरेशन कैसे ट्रांजिशन देते हैं, किस तरीके से आपके चैलेंजेस थे, किस तरीके से आप एंटर हुए, किस तरीके से आपके चैलेंजेस किस तरह एंटर हुए, किस तरह से आपने 4th जनरेशन से एक्सपीरियंस दिया, वो आगे आपने फॉरवर्ड किया, किस तरीके से उन्होंने यंग पैनलिस्ट ने सब ने उन्होंने यंग जनरेशन ने किस तरीके से उसको लिया, कुछ अपना इनपुट डाला, कुछ उसको चेंज किया, कुछ उसको अपनी एक्सपर्टाइजेशन से उसको कहते हैं ना कि कोई डिज़ाइन होती है, तो डिज़ाइन को आपने डिज़ाइन दी, उस डिज़ाइन को कहीं पे भी कल्चरल ट्रेडिशनल कट न करते हुए उन्होंने इनहांस किया उस डिज़ाइन को, उसी डिज़ाइन को वही रखा लेकिन उसको और इनहांस किया और बेटर बनाया. तो वो कर रहे हैं और वो अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं आपका हार्ड वर्क और हार्ड एफर्ट्स. सो दिस इज अ ग्रेट, दिस इज द थिंग विल हैपन. एंड ये जो फैमिली बिजनेस है, जो ट्रांजिशन होता है, वो इसी तरीके से होना चाहिए. ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, और ट्रस्ट उसके लिए भी नील ने बहुत अच्छा कहा कि ट्रस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. डेफिनेटली वो ट्रस्ट तब आएगा जब हम उनको प्रूव करेंगे कि हमें वो ट्रस्ट कर सके. ये नहीं कि मेरा फादर मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करता, मेरे अंकल मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते. आपने ऐसा कौन सा काम किया या आपने उनको प्रूव किया क्या ट्रस्ट करने का? सो यू हैव टू क्रिएट. सो दिस इज अ करेक्टली वेरी नाइसली सेड नील कि हमें ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वी कैन मैनेज, वी कैन हैंडल, वी कैन डू दिस, एंड हम लोग आपका प्रोटेक्ट करेंगे, लेगेसी भी प्रोटेक्ट करेंगे, इमोशनल सेंटीमेंट थिंग्स भी हम प्रो करेंगे. सो दिस इज एक्सेलेंट. मैं खुद बहुत कुछ सीखा हूँ इधर से, और ऑफकोर्स आप लोग भी बहुत डेफिनेटली कुछ सीखे ही होंगे. सो अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या आप एडवाइस देना चाहते हैं यहाँ पर
कुछ लोग आप जैसे भी हैं जो उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि किस तरीके से जनरेशन के साथ आपको डील करना चाहिए, और आप नए जनरेशन को भी क्या एडवाइस देंगे कि जो आपने लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस देंगे उनके भले के लिए कि वो क्या चेंज करें और क्या नहीं करें? तो उसके बारे में कुछ आप छोटे से में बना, क्योंकि टाइम कमी है अपनी को थोड़ी सी। जनरेशन नेक्स्ट वो है जो पहले नहीं हुआ, अब नया होना है। तो जो नया होना है उसमें जो प्रेजेंट जनरेशन है और जो इनकी आने वाली जनरेशन है उसके अंदर, जैसे हमने पहले एआई का नाम सुना ही नहीं था, हमने पहले ये नहीं सुना था कि कैसे आज की तारीख में कितनी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं बिजनेस के अंदर, हमें कैसे लीगल इश्यूज को बिजनेस के अंदर डालना सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप को लीगैलिटी को रखना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको बिजनेस में सस्टेन करना है। दूसरी बात है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की। कस्टमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही हैं, काम करने वालों का बिहेवियर चेंज हो रहा है, उनकी एजुकेशन चेंज हो रही है। तो इस चेंज के अंदर कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हमें चेंज होना चाहिए कि हम अपने आने वाली जो आज की प्रेजेंट जनरेशन है उसको मोटिवेट करें कि आप इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। आज मुझे बताइए कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर ज्वेलरी की जो 100 साल पुरानी है? बहुत कम। तो क्यों कम है? क्योंकि उनके अंदर वो जो इश्यूज जो हैं वो उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए, वो समय के साथ उन्होंने अपने आप को तब्दील नहीं किया। और उस समय उनका बड़ा, मैं गंगानगर गया पिछले दिनों में और वहाँ मैंने देखा बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां के जिनके उस समय बिजनेस सब बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने बच्चों के साथ चेंज नहीं किया। अब दूसरी जो बात है एक और कि बच्चे चाहते ही नहीं अगर ये काम करना और हम उनसे ज़बरदस्ती काम करवाएं, या उनके बच्चों के पास में एक नई अपॉर्चुनिटीज है वो काम करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए ना, टाटा कंपनी ने, तनिष्क कंपनी के, जो आज से हम 20 साल पहले सोचते भी नहीं थे, और आज वो कहाँ पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने समय की धारा को समझा और अपने आप को तब्दील किया, और वो लगातार तब्दील करते जा रहे हैं और हम नहीं कर रहे। तो भैया खत्म होने वाली बात है। इसलिए इम्पोर्टेंट है समय के हिसाब से बदलो, टेक्नोलॉजी बदलो, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को बदलो, उनकी इच्छाओं को बदलो, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करो, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं अच्छे भले ट्रेन किए हुए बंदे, क्योंकि अब सारा काम हम खुद तो कर। अब दूसरी जो बात आ गई है, जब हम अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो हमें कारपोरेट थिंकिंग करनी पड़ती है। हम अपनी अकेली थिंकिंग से काम नहीं कर सकते। तो कारपोरेट थिंकिंग से इसका मतलब ये है कि हमें कुछ प्रिंसिपल, अब बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं उनको काम इंटरेस्ट तो है, उनका पैसा भी लगा है, फैमिली भी है, लेकिन वो कुछ और काम कर रही हैं, लेकिन कभी कभी उसके अंदर इंटरेस्ट भी दिखाती हैं। तो उनका शेयर है उस कारपोरेट में, तो शेयर है, उनकी स्किल भी हो रहे हैं, शेयर भी है, लेकिन काम नहीं कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट है। तो एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा समय के बदलाव के हिसाब से, कि ताकि हमारी जो कंपनियां, जो पिछले समय आप हर आदमी अपने शहरों में देखे कि कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल आज खत्म हो गई हैं। ज्वेलरी की बात में तो है ही है, और तो बाकी जगह पर नामो निशान नहीं रहा है उनका। तो अपने आप को प्लीज बदलो, समय की धारा बदलो, बच्चों से एडजस्ट करो, उनकी पूरी इच्छा हो तभी उनको ये काम दो, वरना उनसे काम मत करो। तो काम को अपने आज की तारीख में हम वेरियस अदर सॉर्ट्स ऑफ बिजनेसेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शेयर्स में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो ज्वेलरी का अपना भी धंधा है और कॉर्पोरेट कंपनी जो चल रही है ना ज्वेलरी की, उसके अंदर भी शेयर डाल रखे हैं। तो जो काम हम खुद कर सकते हैं करें, जो हम नहीं कर सकते हैं उसका ढंग ढूंढें। मेरी तो सिर्फ यही तमन्ना है। वेरी वेल एडवाइस, एक्सेलेंट। आशीष जी, आपकी क्या राय है दोनों जनरेशन के लिए, आपकी जनरेशन और जो नेक्स्ट जनरेशन? मैं हमारी जनरेशन के लिए मैं पिछले 3 सालों से देश भर में घुमा हूँ, तो मैंने हर जगह
यही कहा है क्योंकि मैंने हर जगह यही फीडबैक पाया है। और आज मुझे खुशी है कि नीलेश भाई नेक्स्ट जेन को लीड कर रहे हैं और नेक्स्ट जेन के इतने सारे लोग आज सेमिनार में आए हैं, इंडस्ट्री में आ रहे हैं। जो हमें फीडबैक आ रहा था कि आशीष भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है ना, उनको अपने बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारी जनरेशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह से उनको बिजनेस हैंड ओवर करें जो उनको डाइजेस्टेबल हो, जो उनको पसंद हो, उनकी जनरेशन के हिसाब से हो, नए जनरेशन के हिसाब से हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी रीत से ही धंधा करते आ रहे हैं जिसमें आज के बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ओनर्स इज ऑन अस टू हैंड ओवर द बिजनेस टू द नेक्स्ट जनरेशन in a form that they will like. This is a very very ये hot important topic है। what आशीष जी said, very very hot topic। जो आज नया जनरेशन है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर कम इंटरेस्ट ले रहा है, वो अपने फादर्स के चैलेंजेस देख रहा है, ये इतनी सब कुछ सिस्टम्स देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, उन्हें मोटिवेट करना, उनको इंकरेज करना, उनको ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में बताना कि क्या फ्यूचर है, क्या है। तो इज़ वेरी वेल पॉइंट आप सेड आशीष जी। और that was the point where we decided to have a next gen division in GJC so that the next generation will also get motivated and interested in the business. और नेक्स्ट नए जनरेशन को मैं क्या बताऊंगा, तो 2-3 थिंग्स। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर सीनियर जनरेशन, पुट योर सेल्फ इन देयर शूज Exactly. and see what would you have done if you were in their shoes. नंबर 2 और नंबर 3 उनका एक सबका एक प्रॉब्लम है, मेरा भी जब मैं वो जनरेशन में था तब था, कि कोई भी सीनियर हमें कोई भी चीज़ बताता है तो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू व्हाट ही इज सेइंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज सेइंग, यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट आई विल रिप्लाई टू हिम। वेरी वेल, दैट वेरी इज वेल। स्टैंडर्ड पॉलिसी। प्रॉब्लम सबका है। यस मेरे को पिताजी बोले तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा, यस कैसे उनको क्रॉस करूंगा। तो उसमें जो क्या बता रहे हैं वो समझना हम भूल जाते हैं। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बोला है। और मेरे को भी ये एक्सपीरियंस होता है कभी कभी, और हर एक को ये एक्सपीरियंस होता होगा कि वेरी वेल, बहुत ही डीप पॉइंट बोला इन्होंने। तो पर्सनल में होता ही है कि पहले वाला मैं राजेंद्र भाई को कैसे काटूं, नहीं, पहले राजेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं सुनूं, यस, उस पर विचार करो फिर बोलो। Yeah. आई थिंक दीज 3 points आई विल से। एक्सेलेंट, सुपर। और सुपर, मैं भी आपसे भी यही सेम जानना चाहूँगा कि आपका जो फादर का जनरेशन, अंकल का जनरेशन, ब्रदर्स का जनरेशन, और उनके बारे में क्या बोलेंगे, और आपके जनरेशन जो है उनको क्या एडवाइस देंगे, जो आपने एक्सपीरियंस किया है तो उनको क्या एडवाइस देंगे जिससे वो कुछ लर्न कर सके आपसे। सो फादर के जनरेशन में इफ़ यू सी तो एक कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, जो हार्ड वर्क उन्होंने किया है, जैसे उन्होंने बताया कि पहले तो एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था कि व्हाट इज द कोर थिंग, आपका कोर पर्पस क्यों है जो आप ये बिजनेस में हो, वो आप पहले समझो तो ही आप ये बिजनेस पैशनेटली रन कर पाओगे। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने एक फैमिली में किया था, उससे हमने ये सोचा रांका ज्वेलर्स का कोर पर्पस क्या है। इट्स लाइक कमिटमेंट टुवर्ड्स एक्सीलेंस, क्वालिटी, सर्विस, ये सब आए। तो ये कोर पर्पस अगर दिमाग में रखे ना तो पैशनेटली हम काम कर सकते हैं, जो हमने हमारे ओल्डर जनरेशन में देखा है, उसको जो उनसे सीखा है, उनसे जो पॉजिटिव्स है, जैसे उन्होंने बताया पॉजिटिव सब ली, नेगेटिव्स इग्नोर करो और उसमें अपना ऐड करके टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। यस, सो नेक्स्ट जनरेशन को वही एडवाइस है कि बाबा एजुकेशन के सिंस यू आर यंग, उनको प्रैक्टिकल जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ शोरूम्स में भी उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे भी सीखना चाहिए कि क्या है, तो ही वो ले पाएंगे। सेकेंडली, रिस्पेक्ट योर कल्चर एंड ट्रेडिशन along with while embracing your innovation and technology. So अगर वो कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि आपका बेस ही वो है, आप लोग ट्रेडिशन, कल्चर, इससे आपने फाउंडेशन बनाया है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज आपकी जो लोकल क्लाइंटेल है वो क्लाइंटेल वो है। आप आपकी टेक्नोलॉजी से यू ज्वाइन द न्यू जनरेशन कस्टमर्स, फाउंडेशन खराब मत करो। फिर वापस टुवर्ड्स जो ओल्डर जनरेशन ने टुवर्ड्स सोसाइटी, उनका जो सोशल एंगेजमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, आज वॉट एवर यू अर्न दे हैव गिवन टू द सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड नाउ। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स यू हैव टू वर्क फॉर योर, यू हैव टू गिव अ सर्टेन पोर्शन टू योर एम्प्लॉइज। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज मिनिमम 75 to 100 फैमिलीज है जो आज हमारे
हमने जिन्हों को घर दिए हुए हैं, जिनके फैमिली सेट किए हुए हैं, दे हैव नॉट लेफ्ट अस लास्ट 25 years, और उनकी पूरी फैमिली, बिकॉज दे हैव स्पेंड देयर 30% ऑफ लाइफ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विथ योर ग्रोथ यू हैव टू थिंक फॉर योर एम्प्लॉयज ऑल्सो. Very well said. Very well said. Very well. Well put. So, Maitri. So for learning, I think जो I understand कि हम अगर हमारा प्रीवियस जनरेशन एक लेवल पे आया है तो वो एक्चुअली उनके कल्चर और एथिक्स के वजह से आया है. तो वी शुड नॉट लेट गो आर actually not even their culture and ethics, because of which our foundation today is very strong. So as a younger generation we should always be patient, we should be always be looking towards a learning curve कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, rather than always in the spirit अरे हम तो सीख चुके हैं अब हमें उन्हें सिखाना है. So we have to be more accepting learning rather than teaching them. So this is one thing that I can tell to the generation to understand. Excellent. एडवाइस देने के लिए तो मैं छोटा हूँ, पर नहीं, एक्सपीरियंस में शेयर ऐसा- कर सकता हूँ. ऐसे नहीं है, एडवाइस उनको भी चाहिए. उन्होंने आशीष जी ने सबके सामने बोला है कि मैं वो उनका पहली चीज बड़प्पन ऑफिस है. जाता हूँ तो सबसे पहले मैं सीखना चाहता हूँ मेरे यंग जनरेशन से. आशीष जी ने ये कहा है तो वो आपसे सीखना भी चाहते हैं, तो यू शुड ऑल्सो उनको कुछ एडवाइस भी दीजिए. वो इनका सबका बड़प्पन है कि ऐसा बोल रहे हैं. मैं इट्स नॉट जोक नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम रियली स्मॉल टू गिव एन एडवाइस, बट व्हाट आई कैन से इज एन एक्सपीरियंस आई कैन शेयर. फैमिली बिजनेसेस है 100 years 200 years बहुत जन के चालू है. सो आई थिंक सो आवर जनरेशन हैज टू थिंक कि what all we can add to it and how to take it forward, and the trust which is there, which will be coming to us, how to keep it intact and take it forward. Very short and sweet. सुपर वेरी गुड. सो इट वाज अ वेरी बहुत कुछ मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला. एक चीज़ मैंने बहुत गौर से सीखी, वो ये है कि हमारे पहले जॉइंट फैमिली होती थी और कब सुख आता था, दुख आता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते थे, किसी को पता ही नहीं लगता था. किसी को मालूम, हम इस तरीके से निकल जाते थे प्रॉब्लम्स कि पता ही नहीं रहता था, क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ होती थी. वो फैमिली बन के सब साथ में रहते थे. तो वो अब जब अगर आप अलग हो जाते हो, सिंगल हो जाते हो, तो सब आपको, पहले तो जो शादियां होती थी, किसी के मरण में जाना, परण में जाना, तो इतने भाई होते थे, एक भाई वो संभाल लेता था, एक भाई ये संभाल लेता था. ऐसा नहीं होता था कि हर शादियों में जाते थे, हर जगह पे पहुंच जाते थे. तो वो फैमिली, बिकॉज ऑफ फैमिली कि भाई ये मेरा भाई संभाल रहा है, ये मेरा भाई संभाल रहा है. अब भाइयों के अंदर भी ज्वेलरी बिजनेस आज की तारीख में, मैं सुभाष जी मैं बोलूँगा कि शायद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो फैमिली बिजनेस को इतना इंपॉर्टेंस देती है. मुझे मैं भी यूरोप अमेरिका गया हूँ, लेकिन मुझे वो जो फीलिंग्स आप लोगों से मैंने सुनी कि आप लोग सब लोगों ने यही कहा कि फैमिली बिजनेस फैमिली पहले होनी चाहिए, फैमिली अंडरस्टैंडिंग पहले होनी चाहिए. तो ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है और इंडिया में, भारत में ही मिल सकता है ये सब जो सबको. और जो आज चेन स्टोर्स हमारे यहाँ पे खुल रहे हैं, ये आप देखिए, फैमिली, जैसे सुभाष जी ने कहा कि जो थिंकिंग है नेक्स्ट जनरेशन की, वो फैमिली बिजनेस से कॉर्पोरेट थिंकिंग होनी चाहिए. तो वो आज जो कॉर्पोरेट बन चुके हैं, जो कॉर्पोरेट आज चला रहे हैं बड़े बड़े, तो वो सब फैमिली से ही हैं, फैमिली से ही निकले हैं. आज वो उनके नेक्स्ट जनरेशन ज्वाइंट हुए हैं और उन्होंने आज कॉर्पोरेट लेवल बनाया. तो वही चीज़ है कि वो कॉर्पोरेट लेवल कब बनती है, जब फैमिली और नेक्स्ट जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग, जो ब्रिजिंग जो होता है, वो अंडरस्टैंड होता है एक दूसरे के अंदर, वो तो ही ये बढ़ सकता है. वरना सुभाष जी ने कहा कि सब अलग हो जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे. जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी. लुक एट मुकेश, where he is rich and where is Anil Ambani. भाई रिकॉर्डिंग को भेजना मत ना किधर. नहीं तो मुकेश जी आ जाएंगे इधर ही. So if I have to conclude our panel discussion, I will do it in this way. The journey through our family business from our grandfather to the current generation has been fascinating and filled with learning experiences. Each member has contributed to building the legacy with passion and hard work. As the torch passes to the next generation, they honor the past
while embracing the responsibility to innovate, propel our industry forward. The new generation values the family's legacy and emotions while bringing professionalism and technological organization to the table. With their leadership, we are confident, all are confident that the family business will thrive the corporate level and reach new heights. Thank you all for unwavering support and attentive listening. God bless you all. And this was a beautiful panel discussion, and I'm lucky and fortunate to have such a great legends here and the great dynamic youngster years. And I myself has learned, and I'm thank you Nilesh bhai, GJC, that you gave me this opportunity, and it was really for me, it was learning from this side and learning from their side. So it was a great और इस तरह के सेमिनार्स होते रहने चाहिए. और मुझे काफ़ी फीलिंग्स भी आई है कि और हमारे जो अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने नए जनरेशन की अंडरस्टैंडिंग देखी, इट वाज रियली इंस्पायरिंग. जो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं अपने ट्रेडिशन को, कल्चर को, और उसके साथ साथ में वो लोग टेक्नोलॉजिकल चेंज और प्रोफेशनलिज्म लाना चाहते हैं. दैट्स अ वेरी मुझे खुद को आज कॉन्फिडेंट हो गया कि वी आर इन द सेफ एंड बेटर हैंड्स. थैंक यू सो मच.